Hello, future officers. I welcome you once again to the sprint series that has been organized by us for your upcoming CDS examination. So, today I am here with part 5 of your English preparation, and today we will be doing the topic of close test and active and passive voice. These are a few questions that can give you 100% marks. You can authoritatively get 100% marks in these topics. So, I'm going to tell you how to solve them so that you're able to do them without any negative marking, right? So without wasting our time, let's start with it. So first we will do a cloze test. Now I am hopeful that all of you are aware of what is a cloze test, but for the ease of everyone, I'll explain it once again. In a cloze test, you are given a paragraph with a few fill-ups in between, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं, a few fill-ups in between, and you are supposed to fill these blanks with words which help make sense of the paragraph. तो आपको ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं जिनकी वजह से इस पैराग्राफ का हमें सेंस समझ में आए क्या है. सो यू विल बी गिवन क्वेश्चंस एंड यू विल बी गिवन ऑप्शंस इन रीडिंग विच एंड बाय फिलिंग विच you will be able to make sense of the paragraph, right? So we have to learn how to do that. Now if you read this paragraph, how to do cloze test is, पहले आप इसकी एक जनरल रीडिंग लो कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है. तो like it is written right in the beginning, it's talking about Delhi's air quality, right? and यहाँ लिखा हुआ है deteriorate, तो वो उसके बारे में बता रहा है कि एयर क्वालिटी ख़राब कैसे होती है. एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बीच में लिखा हुआ है. इट्स टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन एयर क्वालिटी इंडेक्स. सिटीजन्स की बात हो रही है जिनको टॉक्सिक एयर से सफरिंग होती है, राइट? और नीचे हम अगर देखें तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, इम्पेयर्ड लंग फंक्शन वगैरह, ये सब की इस पैराग्राफ में बात हो रही है. सो व्हाट वी कैन मेक आउट फ्रॉम रीडिंग दिस इज दैट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द एयर क्वालिटी, राइट? It is talking about the air quality in Delhi. In between the paragraph, it is also talking about the measures taken by the government. Measures taken by the government to stop this. तो अब हमें ऐसी ब्लैंक्स फिल करनी है जो इस पैराग्राफ में सेंसिबल बातें करवा सके, राइट? सो लेट मी जस्ट इरेज द लाइन so that you are able to read it, and let us start doing this. I have brought 2 cloze tests for you so that you properly are able to practice it properly, and so that the next time you see a cloze test you do not lose any marks, right? So let us start. Now look at the first blank. Delhi's air quality deteriorates with unfailing dash at this time of the year. दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट करती है विद अनफॉलिंग वॉट. यहाँ पे हमें फिल करना है कुछ. सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग आवर ऑप्शंस. इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज समटाइम्स. सो Delhi's air quality deteriorates with unfailing sometimes at this time of the year. No. Delhi's air quality deteriorates with unfailing always at this time. Nope. At this time of the year की बात हो रही है. Always is something which is happening at all times. So always तो वैसे भी ये ऑप्शन नहीं बनता. Now look at the third option, regularity. Delhi's air quality deteriorates with unfailing regularity at this time of the year. So this is our option. Regularity का मतलब होता है something which happens on a regular basis. On a regular basis. आपके पास 2 ऑप्शन थे, regular भी था. But if you look at this, the better option is regularity. Like I told you in the previous lecture, you have to go with the most suitable answer. Go with the most suitable answer. So the most suitable is regularity. राइट? अभी हम बी पार्ट के लिए आगे पढ़ते हैं. विद लार्ज स्वॉथ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द ग्रिप ऑफ अ सफोकेटिंग स्मॉग, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट कैन मेक इट ईजियर फॉर मिलियंस टू ब्रीथ डू नॉट एक्ट. डू नॉट नेगेटिव है. डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ पैनिक. पैनिक की तो इफ़ द गवर्नमेंट पैनिक्स तब तो सब कुछ खराब हो जाएगा. पैनिक तो नहीं है. डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ लेड बैक. नो, एक्चुअली दे आर लेड बैक. वो लेड बैक हैं, इसलिए दे डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी. इसमें अकम्पलिशमेंट जैसी तो कोई बात नहीं है क्योंकि सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द अकम्पलिशमेंट इन दैट? अकम्पलिशमेंट इज़ व्हेन यू अचीव समथिंग. व्हेन यू अचीव समथिंग, इसमें कोई अचीवमेंट तो है नहीं. सो अर्जेंसी. सो द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी. दैट इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी.
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, वो कहाँ की, कैपिटल की। कैसे, दैट इट हैज़ टर्न इनटू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन टू द कैपिटल, नो, अंडर भी नहीं, ऑन भी नहीं, इट हैज़ बिकम अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन द कैपिटल, कैपिटल के अंदर वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग एक्सट्रीमली हजार्डस लेवल्स, हजार्डस होता है समथिंग विच इज़ डेंजरस, इन सम पार्ट्स नेसेसिटेटिंग, जिसने ज़रूरी कर दिया है ये बात को, द क्लोजर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, मतलब इतनी गंदी हवा होती है कि प्राइमरी स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, वहाँ छुट्टी करवानी पड़ती है। हैज़ फर्दर लोअर्ड इट्स स्टैंडिंग, ऐसा होने से जो उसकी स्टैंडिंग है, गवर्नमेंट की स्टैंडिंग है, वो और भी लो हो गई है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। इट इज़ unconscionable for governments through dash and inaction, through what, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे स्टेप्स या मेजर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये तब आते अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही होती। इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, सो नो स्टेप्स एंड मेजर्स। नाइदर अनकंसर्न्ड, इट इज़ इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले आदमी के साथ क्या हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट का भी यही बिहेवियर है। इट इज़ थ्रू इनडिफरेंस एंड इनएक्शन टू सब्जेक्ट सिटीजन्स टू सच टॉक्सिक एयर एंड कॉज एक्सट्रीम सफरिंग, स्पेशली क्या, सिंस, नो, इन पीपल with respiratory respiratory ailments and impaired lung function, okay, we can keep this option open. thereon नहीं आएगा, thereon is used instead of therefore, so यहाँ पे therefore जैसी तो कोई बात नहीं है। अब हम पहला ऑप्शन देखो, हमारे पास among भी है, so let's put both of these. So in action to subject citizens to such toxic air and cause extreme suffering especially among people with respiratory ailments and impaired lung function और कॉज एक्सट्रीम सफरिंग स्पेशली इन पीपल, तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज अमंग, नॉट इन। अमंग वी यूज़, देखो दो वर्ड्स होते हैं, अमंग एंड बिटवीन, अमंग एंड बिटवीन। आपने ये एरर में भी देखा होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, इवन इन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सो यू शुड नो टू गो विद विच ऑप्शन। इफ़ यू लुक एट बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस, अमंग इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम अमंग यूज़ करेंगे। बिटवीन इज़ यूज्ड बिटवीन टू पीपल, जब दो ही लोगों के बीच की बात हो रही है तब हम बिटवीन को यूज़ करेंगे। व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वी विल गो विद अमंग। यहाँ पे अमंग आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स और इम्पेयर्ड लंग फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्लोज टेस्ट एंड आई होप कि इसको करने से आपको आइडिया लगा होगा कि हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस को। लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। Look at the second one. The sun had set, but there was still some light in the sky. Martin dash on his elbow. Martin dash on his elbow. So पहले हम options देखते हैं. Martin sat on his elbow. Can you sit on your elbow? No, you cannot. Martin crossed on his elbow. He cannot cross his elbow. Martin lay on his elbow. No. आप अपनी elbow के ऊपर कैसे lay कर सकते हो? You can't. सो आवर ऑप्शन इज सी, लीन्ड। ऐसा करते हो ना आप रेलिंग के ऊपर, जैसे आप अपनी बाजू रख के थोड़ा यू कम इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन, उसको बोलते हैं लीनिंग। सो मार्टिन लीन्ड ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड डैश थ्रू द लीव्स। लुक्ड इनटू थ्रू द लीव्स, नो। लुक्ड एट थ्रू द लीव्स, नो। लुक्ड फॉर थ्रू द लीव्स, ये भी नहीं। लुक्ड डाउन थ्रू द लीव्स, लीव्स आ रहे थे उसके आगे तो उसने उसके नीचे देखा क्या है। In the waters of the lake, close to the shore, he saw a dash of alligators. Now this is a pure vocabulary word. When there is a group of alligators, उसको हम semblance बोलते हैं. Okay? It's not family, volume or number. He saw a semblance of alligators. बहुत सारे alligators, group of alligators, floating quietly. One of the creatures, dash huge one. अब an तब आता अगर यहाँ vowel है, तो an तो नहीं आएगा. One huge one, no. Single huge one, this is also not applicable. A huge one. So one of the creatures, a huge one, एक बहुत बड़ा crocodile, was lying on a high dash of sand a few yards from the water. तो अब sand जहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो उसको ना हम blank बोलते हैं, ना pile, ना pile, ना pit, sorry, it is pile. Sorry, it is pile, okay? Pile of sand. कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाए उसको बोलते हैं पाइल ऑफ सैंड. सो दिस इज़ हाउ यू एलिमिनेट योर ऑप्शंस, राइट? वी यूज़ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन
जो कि आई एम होपिंग आप अपनी GS में भी यूज़ करते हो. सेम मेथड यू हैव टू डिप्लॉय इन योर इंग्लिश पेपर सो दैट आप अपने नियरेस्ट ऑप्शन के क्लोज पहुंच पाओ. जैसे ये क्लोज टेस्ट है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होती हैं. देन यू हैव टू गो विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, प्लीज़ लुक फॉर इट. कौन सी ज़्यादा सूटेबल है उसको आप टिक करो. कई बार दो ऑप्शंस बिल्कुल पास पास में, जैसे 50-50 की प्रपोर्शन आ जाती है ना. सो लुक फॉर द वन विच इज़ 51. एक 51 वाला ऑप्शन होगा, आप उसके साथ जाइएगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डू एलिमिनेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डे इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ दिस इज़ वन पार्ट जहाँ पे कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इनको कैसे सॉल्व करना है. लुक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज सिंपली अ गेम ऑफ टेंसेज. टेंसेज आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश की बैकबोन है ये. अगर आपको टेंस आते हैं, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन एनीथिंग इन इंग्लिश, राइट. इन द सेम मैनर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज अ प्योरली टेंस बेस्ड क्वेश्चन. तो आप इसको टेंसेज से बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो. कैसे? लेट्स स्टार्ट. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. द प्रीलिमिनरी एग्जाम was passed by over 2/3 of the applicants of the civil services. अब पहली बात तो ये, आप ये आइडेंटिफाई करो क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस. नाउ बाय रीडिंग द सेंटेंस यू कैन मेक आउट दैट दिस इज पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस है. अब इसमें आप ढूंढो सब्जेक्ट कौन है. सब्जेक्ट है एप्लीकेंट्स. ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस जिसने काम किया हो कोई. नाउन है ये, बेसिकली द नाउन, राइट. सो द सब्जेक्ट इज एप्लीकेंट्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज प्रीलिमिनरी एग्जाम. ऑब्जेक्ट इज प्रीलिमिनरी एग्जाम, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ वॉइस इज दैट यू हैव टू इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और ये आपका वर्ब है, वॉज पास्ड बाय. दिस इज योर वर्ब, राइट. द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज समथिंग जो इंटरचेंज होने से अपने आप अपनी प्लेसमेंट पे आ जाएगी. नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. पहला देखो आप, ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज पास्ड द प्रीलिमिनरी एग्जाम. ओके, दिस सीम सूटेबल, इसको रखो. ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज आर पासिंग द एग्जाम. नो, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास पास्ट टेंस की बात हो गई है, तो यहाँ प्रेजेंट की हो रही है. दिस इज नॉट द ऑप्शन. Over 2/3 of the applicants of the civil services have passed the exam. This is also not the option because have is also present. Present tense की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है. This is past tense, so this is also the wrong option. Now look at the third one. Over 2/3 of the applicants of the civil services passed the preliminary exam. No, this is a simple present tense. Simple present tense की statement है ये. This is also incorrect. So our correct option is option A. देखो, आप टेंस की मदद से यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. चाहे जैसी भी वॉइस आ जाए आपके पास, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू पास दैट क्वेश्चन वेरी इजीली. यहाँ हमने देखा पास्ट की बात हो रही थी और 3 में प्रेजेंट की बात हो रही है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सो वी विल गो विद द ऑप्शन विच इज़ टॉकिंग ऑफ पास्ट. ये पास्ट टेंस में बता रहा है हमें, राइट. लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट. ही इंक्रीज्ड हिज पेस एज द सनसेट अप्रोच्ड. नाउ दिस इज एक्टिव वॉइस. ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, राइट. तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? ही इज़ द सब्जेक्ट. ये हमारा सब्जेक्ट है एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हमारे पास ही इंक्रीज्ड हिज पेस. और सनसेट अप्रोच हो रहा था जैसे जैसे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसने अपनी पेस इंक्रीज़ की, मतलब वो जल्दी जल्दी चलने लगा जैसे जैसे सनसेट पास आ रहा था. नाउ लेट्स मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस. Look at the first option. His pace is increased by him as the sunset approached. No, this is present tense. is वो past की बात हो रही है, गलत हो गया ये. His pace was increased by him as the sunset approached. Okay, ये viable लग रही ऑप्शन, इसको हम अभी रखते हैं. Third, his pace has increased by him. No, पहली बात तो tense की placement गलत है और दूसरा has is present tense. This is wrong. Third also, his pace has been increased by him. No. दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट और ये 3 प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हिज पेस वॉज इंक्रीज बाय हिम एज द सनसेट अप्रोच्ड. ऑल राइट. इन द सिमिलर मैनर लेट्स लुक एट द थर्ड वन. द कमिटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल.
दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस, रिटन इन एक्टिव वॉइस। हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस कैसे, कमेटी इज योर सब्जेक्ट, राइट, कमेटी इज योर सब्जेक्ट। एक्शन ऑन द बिल, बिल आपका जो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एक्शन है आपका वर्ब, ठीक है। और यहाँ इज लिखा हुआ है, मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, जहाँ वॉज लिखा हुआ है उसको काट डालो, सेकेंड और फोर्थ को। ये सेंटेंस हमारे ऑप्शंस नहीं बनेंगे, राइट। नाउ वन सेकेंड, यस, सो नाउ लेट अस रिव्यू द फर्स्ट वन। एक्शन ऑन द बिल इज कंसिडर्ड बाय द कमेटी, ओके, इसको अभी आप होल्ड पे रखो। एक्शन ऑन द बिल वॉज कंसिडर्ड बाय द कमेटी, ऑल राइट, वी विल टेक दिस इनटू अ परव्यू एज वेल। थर्ड वाले को देखो, एक्शन ऑन द बिल इज बीइंग कंसिडर्ड बाय द कमेटी। अब देखो, जब आपके पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है और इज कंसिडरिंग लिखा हुआ है, तो उसमें आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, योर सेंटेंस विल बी ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, सिंगुलर प्लूरल पे जैसे भी डिपेंड करता है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द रूल यू विल अप्लाई। तो एक्शन ऑन द बिल वॉज कंसिडर्ड बाय, कंसिडर्ड वर्ब थर्ड फॉर्म है, बाय द कमेटी, कमेटी हमारी सब्जेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द मेथड दैट यू विल यूज जब ऐसा सेंटेंस आए, इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल, द कमेटी इज कंसिडरिंग एक्शन ऑन द बिल, ठीक है। नाउ लुक एट द फोर्थ वन, द कंट्रोल रूम इज नोटिफाइंग पुलिस दैट 3 prisoners हैव एस्केप्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में लिखा हुआ है ये, राइट। सो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, सो द रूल दैट वी विल यूज इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर डिपेंडिंग ऑन द सूटेबिलिटी, प्लस बीइंग, यहाँ बीइंग आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द मेथड दैट वी विल यूज। अब हम देखते हैं द कंट्रोल रूम। व्हाट इज द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम जगह है, नोटिफाइंग इज द वर्ब, पुलिस इज योर सब्जेक्ट, prisoners are your object, right? So let us look at it. Now let us look at it. Police are being notified by the control room that 3 prisoners have escaped. Okay. Second, police are notified that 3 prisoners आएगा यहाँ पे, sorry I missed the word, prisoners have escaped by the control room. Third, police have been notified that 3 prisoners have escaped by the control room. Last, police is notified that 3 prisoners have escaped by the control room. अब आप देखो, have वाला केस तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि हमने पढ़ लिया is, am, are ही आएगा, है ना। तो is और are वाले ऑप्शंस में हम दोबारा पढ़ते हैं। Police are being notified by the control room that 3 prisoners have escaped. This will become your correct answer, ठीक है। are इसलिए आएगा बिकॉज पुलिस इज प्लूरल, पुलिस प्लूरल है, इसलिए हम उसके साथ आर यूज़ करेंगे, ऑल राइट। आर बीइंग नोटिफाइड इसलिए आएगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमने सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ बीइंग नहीं लिखा कहीं पे भी, लास्ट में भी बीइंग कहीं पे नहीं लिखा। एक ही सेंटेंस है जिसमें बीइंग यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर रूल, सो दैट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, ओके। नाउ लुक एट द फिफ्थ वन, साइंटिस्ट्स सक्सेसफुली कंडक्टेड अ वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की यहाँ बात हो रही है। तो जब आपके पास सिंपल पास्ट टेंस आएगा उसका पैसिव बनाने का रूल क्या है? रूल है दैट यू विल यूज ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर डिपेंडिंग ऑन प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी हम देखते हैं, अ वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स कंडक्टेड सक्सेसफुली, वॉज वर यहाँ पे है ही नहीं, ये गलत। अ वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स इज कंडक्टेड सक्सेसफुली, नो, दिस इज सिंपल पास्ट और ये प्रेजेंट की बात हो गई तो ये तो गलत है।
थर्ड देखो, अब वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स हैज़ बीन कंडक्टेड, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये सेंटेंस तब करेक्ट होता अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ होता। अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ था तो ये सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन ये सिंपल पास्ट है तो दिस इज़ रॉन्ग। नाउ फोर्थ इज आवर आंसर, अ वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वॉज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो ये रूल है जो आपको याद रखना है। नाउ लुक एट द सिक्स्थ वन, द ड्रामा इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास दिस ईयर। नाउ दिस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है एंड इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेस्ट सेंटेंस है। तो अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमारे ऊपर क्या रूल अप्लाई होंगे? वी विल यूज़ एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले प्लस इज, एम और आर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव बनाने का रूल है। ओके, हमारे पास पैसिव दिया हुआ है, हमने इसका एक्टिव बनाना है। दिस इज़ द रूल दैट वी विल यूज़। अभी हम देखते हैं वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। नाउ मोस्ट ऑफ द क्लास इज परफॉर्मिंग द ड्रामा दिस ईयर। ओके, वी विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। पहले तो आप सी और डी ऑप्शन को कैंसिल करो क्योंकि परफॉर्म्ड लिखा हुआ है, ये गलत है, हमें आईएनजी चाहिए। आईएनजी वाले दो ही सेंटेंस हैं। अभी आप दूसरा देखो, मोस्ट ऑफ द क्लास विल बी परफॉर्मिंग, मैंने कहीं भी रूल में बी नहीं बताया आपको, तो ये गलत हो गया। आर आंसर इज ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ द क्लास इज परफॉर्मिंग द ड्रामा दिस ईयर। ठीक है, नाउ लुक एट द सेवेंथ वन, व्हाट वॉज शी डूइंग इन द हाउस। दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया अब हमारे पास। हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी, अब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, राइट। तो हम ऊपर वाले रूल को ही देखते हैं कि सब्जेक्ट आएगा पहले, राइट, और उसके बाद वॉज या वर, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ वॉज और वर लेंगे, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लोगे, और यहाँ पे बीइंग आएगा जब आप पास्ट की बात करते हो ना। लेट मी राइट द रूल अगेन, पास्ट का। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का मैं रूल बता रही हूँ कौन सा है, यू कैन नोट इट डाउन। द रूल विल बी, यू विल राइट द क्वेश्चन दैट इज़ व्हाट और हाउ, जो भी है दिया हुआ आपको वो, प्लस यू विल यूज़ वॉज और वर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय द सब्जेक्ट। दिस इज़ द रूल दैट अप्लाइज टू पास्ट कंटिन्यूअस। ये अब हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस लुक एट आवर ऑप्शंस। लुक एट द लास्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ डन बाय हर इन द हाउस, बीइंग नहीं लिखा हुआ, दिस इज़ गॉन। लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, उसमें भी बीइंग नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बची हैं, वी कैन एलिमिनेट दीज। तीसरी ऑप्शन में इज़ लिखा हुआ है जबकि सेंटेंस पास्ट में है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर। आवर आंसर इज ऑप्शन ए, what was being done by her in the house. ठीक है, this is how you identify the correct answer. Now look at the eighth one, the sudden noise frightened the baby. Now this is simple past, simple past का tense है, हमें इसकी passive voice बनानी है, right? तो हम कैसे बनाएंगे? The rule is subject plus was और were plus verb की third form प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं जो हमारा इज़ वाला सेंटेंस है ये तो वैसे ही गलत है, और सेकंड बेबी फ्राइटन्स इन सडन नॉइज, ये सिंपल प्रेजेंट है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन को, उसमें बाय को यूज़ ही नहीं किया, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर। आवर आंसर इज ऑप्शन सी, द बेबी वॉज फ्राइटन्ड बाय द सडन नॉइज। ठीक है, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करोगे। नाउ 9th एंड 10th ऑप्शन की क्वेश्चन की मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दी, सो लेट अस प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस विदाउट ऑप्शन, राइट, क्योंकि अगर आपको रूल्स आते हैं तो आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नाउ लुक एट द 9th वन, ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री। ठीक है, वो एक मैंगो ट्री लगाता है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनेगा अ मैंगो ट्री
a mango tree is being planted by him. planted को हम रखेंगे, he plants a mango tree is being planted by him. ठीक है, he सब्जेक्ट था, मैंगो ट्री ऑब्जेक्ट है, प्लांट्स हमारा वर्ब है. तो दिस इज हाउ वी विल चेंज इट. नाउ लुक एट द 10th क्वेश्चन. आई हैव रिटन दिस ऐसे, मैंने ये ऐसे लिख लिया. इसका आप पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा इसका पैसिव? इसका पैसिव बनेगा दिस ऐसे हैज़ बीन रिटन बाय मी. अब आप देखो यहाँ हैव था क्योंकि आई लगा हुआ था आगे. दिस ऐसे, एक ही ऐसे की बात हो रही है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे अब यहाँ पे. और बीन की यूज़ तो होगी ही होगी क्योंकि मैंने लिखा है, मैं ये बता रहा हूँ, तो बीन आएगा यहाँ पे. रिटन बाय मी, बाय की भी यूसेज होगी. दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. ये प्रेजेंट परफेक्ट था. ठीक है. So students, I hope that with this class you are able to understand the concept of both cloze test as well as your voice, right? And I hope that by the methods that I have taught you, you will be able to eliminate your options and reach on the correct option. Now in the next class I will try to bring parts of speech for you so that you are able to ace the that particular session as well, right? So if you have any doubts, you can contact us on our WhatsApp number which is being displayed on your screen right now. You can also join our Telegram channel. The link for that is given in the description box. So thank you so much for your patient listening, and I hope your preparation is going really well. Practice a lot, practice your previous year questions, and जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ इसको आप उन पुराने क्वेश्चन पेपर्स पे अप्लाई करके देखो. You will find favorable results. Thank you so much. All the very best.